Welcome. We're on the road to 2014, and as we travel through India's political heartland, bringing you special reports from on the ground, tonight we'll be asking whether the mix of religion and politics is inevitable. Baba Ramdev and Maulana Tariq Bukhari will be joining us in just a short while as we bring you this special program from an interior village of Uttar Pradesh, Karidi Gaon in Jagdishpur in central UP. But first, let's bring you our special report on why the BJP party president Rajnath Singh is seeking to invoke the legacy of Atal Bihari Vajpayee. What do we make of his meeting with Muslim clerics, both Shia and Sunni, a meeting that he argues cannot be compared to Sonia Gandhi's meeting with Imam Bukhari? On this special report, we look at what the Vajpayee legacy represents and what to make of the party president's outreach to Muslims and Muslim clerics. In the ancient city of Nawabs, the BJP has been the ruler since the 90s. And one man remains the uncrowned king long after he has faded from active politics. For Lucknow, Atal Bihari Vajpayee, a 5-time member of parliament from here, can still do no wrong. The BJP's campaign everywhere else in India is all about Narendra Modi as its future. But here, the party's own president, in his avatar as Lucknow candidate, also repeatedly harks back to the past. A raucous welcome awaits Rajnath Singh at Lucknow Civil Court as lawyers push and jostle to get a glimpse of the man who could be their next MP. The slogans are telling, not just Ab Ki Baar Modi Sarkar, but also Atal Bihari Vajpayee Zindabad. And Rajnath's own speech is littered with references to the BJP's former Prime Minister. देश को चलाने के लिए ऐसे केवल अर्थशास्त्री नहीं चाहिए, बल्कि देश को चलाने के लिए यथार्थ शास्त्री चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी यथार्थ शास्त्री। लखनऊ की जो एक हेल्दी ट्रेडिशन है, जो स्वस्थ परंपरा है, उस स्वस्थ परंपरा को कायम रखने में और उसको और अधिक स्ट्रेंथन करने में, उसको मजबूत बनाने में जितनी भी अपनी भूमिका निभा सकता हूं, परमात्मा जो भी सामर्थ्य देगा वो मैं अपनी तरफ से मैं करने की पूरी तरह से मैं कोशिश करूंगा। जीतेंगे भाई जीतेंगे, राजनाथ सिंह जीतेंगे। To cast himself in Vajpayee's mold in a historically multicultural, multi-religious constituency is clearly Rajnath Singh's aim. Even his chief campaign manager is Vajpayee's former personal assistant Shiv Kumar. So whether it's prayers at the city Gurdwara or garlanding Dr. Ambedkar's statue and attempting an outreach with the Dalits, the BJP party president is seeking a Vajpayee acceptability and a softer image for himself. So what will be closely watched is how Lucknow's 4.5 lakh Muslims vote. In the age of Modi, will they consolidate behind the Congress candidate Rita Bahuguna Joshi, who lost by 40,000 votes in 2009, or will their vote get divided? It was in 1991 that the BJP first won the seat of Lucknow when Atal Bihari Vajpayee ran from here. After that, of course, Vajpayee went on to become a 5-time member of parliament from Lucknow. Vajpayee, of course, remains the gold standard for leadership in the BJP. So it's no surprise that Rajnath Singh has invoked Vajpayee's name as he began his campaign here. The big question, of course, is how the Muslims of Lucknow will vote. Constituting over 20% of the electorate here, they were happy to back Atal Bihari Vajpayee. But in the Modi era,
Will they back Rajnath Singh? Following again in Vajpayee's footsteps and in a move both controversial and atypical for the BJP leadership, Rajnath Singh even met every Shia and Sunni cleric that matters in Lucknow. This happened days after the BJP called Sonia Gandhi communal for a similar meeting with a Shahi Imam in Delhi. जब सोनिया गांधी इमाम बुखारी से मिली तो बीजेपी की बड़ी क्रिटिसिज्म आई, क्योंकि उसके बाद इमाम बुखारी का बयान भी आया कि सेक्युलर वोट, जिनको उन्होंने सेक्युलर वोट माना, वो स्प्लिट नहीं होना चाहिए। इस मीटिंग में और उनकी मीटिंग में क्या फर्क है? नहीं, मैंने कोई अपील नहीं की। इलेक्शन के बीच में आप इनसे मिलते हैं तो पॉलिटिकल एक तरह से कॉन्टेक्स्ट तो आ ही जाता है। जो कुछ भी उससे जो कुछ भी इन्फ्लुएंस ड्रा करना हो कोई कर ले, लेकिन मैंने ये नहीं रिक्वेस्ट किया कि पूरी कौम के लिए आप फतवा जारी करिए, ऐसा मैंने नहीं किया है। वह अपने मजहब के, अपने धर्म के एक मानिंदा लोग हैं, उनके गुरु हैं, उनके मौलवी हैं, जो कुछ भी हैं, बस उनको रेस्पेक्ट पे करने के लिए मैं गया था। The morning after, he faced the charge of hypocrisy from the Congress. But he had achieved his purpose. One of the most influential Shia clerics, Maulana Kalbe Jawad, said Muslims remain scared of Modi, but Rajnath, he said, is like Vajpayee. वाजपेयी जी का शहर है लखनऊ। अब यहाँ पर जो शिया मुसलमान है, इन द पास्ट दे हैव सपोर्टेड वाजपेयी जी। अभी मोदी जी के लीडरशिप में पार्टी का कैंपेन चल रहा है। आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से वाजपेयी को बैकिंग मिली थी मुसलमान तबका, उसी तरह से राजनाथ सिंह या आज की बीजेपी को सपोर्ट कर सकते हैं। राजनाथ सिंह साहब की इमेज जो है बहरहाल वो वैसी इमेज बन रही है जैसी अब वाजपेयी जी की थी, क्योंकि पहले बहुत खतरा था जब इनकी हुकूमत बनी है कि साहब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और उसके बाद अब जमीनी हकीकत यह है कि सबसे ज्यादा पाकिस्तान से जो अच्छे ताल्लुकात हुए वो उस वक्त हुए कि जब वाजपेयी जी फॉरेन मिनिस्टर थे। तो हम तो समझते हैं कि राजनाथ सिंह साहब जो है वो तकरीबन उसी लेवल पर पहुंच रहे हैं जिस तरह हमारे वाजपेयी जी थे। और नरेंद्र मोदी, नरेंद्र साहब के सिलसिले में सा मुसलमानों को थोड़ा सा अपने उससे खौफ, तो डर महसूस होता है उससे, डर महसूस होता है उससे। लिहाजा हम तो समझते हैं कि राजनाथ सिंह साहब जो है वो इस सिलसिले में जो है वो ज्यादा बेहतर साबित है। The BJP may not have given a single Muslim a ticket in UP and has given only 5 Muslims tickets nationally. But in the old city, they tell us, in Vajpayee's time, Muslim clerics even read the Quran for him after his victory in 2004. Mr. Atal Bihari Vajpayee was a different person. He was a man who was loved by the citizens of Lucknow because of his personality, because of his individuality. And none other than Mr. Vajpayee could be that popular in Lucknow, whomsoever he may be. When it comes to the Muslim voter, invoking Vajpayee's legacy becomes all important for Rajnath Singh, especially to counter the lingering wariness around Narendra Modi. First of all, you know, Rajnath Singh and Atal Bihari Vajpayee are two different species. You know, they are two different human beings. Both of them are BJP, and BJP is supported by the RSS, but the attitude towards politics is slightly different. Vajpayee was a very local person. He was a thorough Lucknowite, seeped in the Ganga Jamna Tehzeeb. He would never say, like the present leadership of the BJP, that says, you know, ये हमारी परंपरा है और ये नहीं है. In Lucknow, it is under the Ganga Jamna Tehzeeb, both the pagdi and the skull cap is our parampara. At Lucknow's oldest tea stall, Sharma Tea Corner, the owner still remembers the day Vajpayee dropped in for a samosa. मैं तो यही मानूंगा वाजपेयी जी का ज़्यादा असर होगा कि उनकी बहुत मेहनत की उन्होंने अपने आप को बिल्कुल ये जैसे कि बीज बो देता है जमीन के अंदर, अपने आप को बो दिया है लखनऊ के अंदर, वही पनापने उन्हीं की वो है। जीतेगा कौन? राजनाथ जी जीत जाएंगे, उम्मीद तो पूरी है वाजपेयी जी की वजह से। बिल्कुल, द क्रेडिट गोज टू वाजपेयी जी। In Lucknow, at least, the battle cry is not just "Ab ki baar Modi Sarkar," but also "Vajpayee se sabse zyada pyar." And Rajnath Singh is hoping to inherit that legacy as he creates a position for himself in national politics post 2014. In Lucknow, with Ruby Dhingra, Numan Siddiqui, Manoj Thakur, and Manu Nair, Barkha Dutt for NDTV.
Let's get started with our big debate on the program tonight as we stop at a village in Jagdishpur on the road to 2014. The big question we're asking today is whether spiritual leaders, religious leaders should be involved in politics at all, whether it is swamis, yoga gurus or clerics. We've seen a lot of that happening, whether it is, of course, Baba Ramdev, whom we know backs the BJP, or whether it's the Shahi Imam who has backed the Congress after their meeting with Sonia Gandhi, or whether most recently it is the BJP president's meeting with prominent Shia and Sunni clerics in Lucknow. Everywhere you look, there is a mix of religion and politics. Is this an inevitable thing? Is this healthy for democracy? Can religion and politics be kept separate? Of course, the BJP says you can't compare Baba Ramdev with Imam Bukhari's meeting with Sonia Gandhi, but the fact is that Rajnath Singh has now also met with Shia clerics and Sunni clerics. Let's introduce our very special panel tonight. For the first time debating on this very sensitive issue, we're joined by Baba Ramdev himself. He's joining us from Rajasthan this evening, and from Delhi tonight we are joined by Tariq Bukhari Saab. He is of course the brother of Shahi Imam of Delhi, and with me here, because on this program as we travel we always try and get you voices from the region, we're joined by Mehru Jafar. She's a well-known author. We're also joined by Nitin Prakash. He's a local businessman and also the head of the Lucknow Book Club. स्वामी जी, आपसे शुरू करूंगी। बहुत सवाल उठते हैं कि बाबा रामदेव का इतना बीजेपी पर असर है कि कैंडिडेट सिलेक्शन और टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में भी उनकी राय मांगी जाती है, वो अपनी राय देते हैं। आप बहुत ही जाने माने योगा गुरु हैं, आपकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है पूरे देश में। आपको लगता है कि आप जैसे गुरु को, बाबा को राजनीति से या किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ना चाहिए? बरखा जी, पहले तो मैं आपको शुक्रिया करता हूं कि आपने एक बड़े मंच पर इतने सब समाज के सम्मानित लोगों को बुला करके एक डिबेट की है। मैं दो तीन बातें कह करके आगे की चर्चा को बढ़ाना चाहूंगा। इस्लाम का पूरी दुनिया में विस्तार हुआ तो जितने भी बड़े राजा महाराजा थे, मैं हिंदुस्तान के संदर्भ में कहूं तो जो है बाबर से लेकर के, हुमायूं से लेकर के, अकबर से लेकर के औरंगजेब तक, क्या सभी राजाओं ने राजनीति के साथ धर्म का विस्तार नहीं किया? क्या जितने भी यूरोप से लोग आए उन्होंने अपने यूरोप के साम्राज्य के साथ, ब्रिटेन के साम्राज्य के साथ क्या ईसाईयत का विस्तार नहीं किया? अगली बात, मैं तो इससे अलग धर्म की बात कर रहा हूं। मैं उस धर्म की बात कर रहा हूं जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने टैगलाइन बनाया, यतो धर्मस्ततो जया। जो संसद भवन में लिखा है धर्म चक्र प्रवर्तनाय, जो हमारे शास्त्रों में लिखा है यतो अभ्युदय निश्चय सिद्धि स धर्म, माने भौतिक जीवन का उत्कर्ष, आर्थिक समृद्धि का उत्कर्ष और दूसरी तरफ नैतिकता का, आध्यात्मिकता का, मानवीय मूल्यों का उत्कर्ष हो, मैं इसको धर्म मानता हूं। मैंने कभी मठ, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर की बात नहीं की, धर्म के नाम पर आरक्षण देने की बात नहीं की। मैंने कभी भी किसी भी पंथ और मजहब के आधार पर लोगों को बांटने की बात नहीं की। जहां तक प्रश्न देश का है तो मैं मानता हूं धर्म से भी पहले देश है। राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। देश ही नहीं होगा तो न हिंदू रहेगा, न मुसलमान, न सिख। लेकिन कभी भी किसी मजहब के बीच में दीवार खड़ी करना ये गैर वाजिब है। लेकिन स्वामी जी, आपने कहा कि आप मजहब के नाम पर वोट नहीं मानते, आप देश के लिए करते हैं जो भी करते हैं। आप ये भी कह रहे हैं कि धर्म और राजनीति बरसों से जुड़ी हुई है। मैं मानती हूं आपकी बात, चले मान लिए 2 मिनट के लिए आपकी बात। लेकिन आपने तो एक पार्टी, एक इंसान को बैकिंग दिया है। आपने नरेंद्र मोदी को बैक किया है, आपने बीजेपी को बैक किया है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अगर आप राजनीति में शामिल हो सकते हैं तो जब शाही इमाम और सोनिया गांधी मिलती हैं तो आपको या बीजेपी को क्यों इतराज होता है? फिर मुझे आदरणीय शाही इमाम जी के मिलने पर कोई आपत्ति नहीं है। मुझे पोप यहां पर आते हैं वेटिकन सिटी से और उनको एक राष्ट्र अध्यक्ष के तौर पर सम्मान दिया जाए तो उसमें भी आपत्ति नहीं है। मैं हिंदू घर में पैदा हुआ, ईश्वर के विधान से मैं कभी किसी मुसलमान से घृणा नहीं करता हूं। आपत्ति इस बात से है कि आदरणीय सोनिया गांधी जी वो हिंदू साधु संतों का प्रायोजिक तरीके से अपमान करते क्योंकि करोड़ों लोगों की उनके प्रति आस्था है, उस आस्था को खंडित किया जाए। सबको बराबरी के भाव से देखना चाहिए किसी भी राजनीतिक पार्टी के व्यक्ति को, यह मैं जरूर कहूंगा।
बुखारी साहब आपसे पूछूंगी, वही एक सवाल लोगों के मन में आता है कि क्या बाबा रामदेव हो कि शाही इमाम हो कि यहाँ पर शिया क्लेरिक है मौलाना कल्बे जवाद हो, आप लोगों को क्या पार्टीज को एंडोर्स करना चाहिए? ठीक है, मैं मानती हूं कि हमारा कल्चर ऐसा है दैट यू कांट रियली सेपरेट रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स, रिलीजन इज इंटरट्वाइंड विद आवर डेली लाइव्स इन अ कल्चरल वे एटलीस्ट, मैं मानती हूं। लेकिन आपकी बात करें तो आपके शाही इमाम साहब ने कहा कि भाई कांग्रेस को वोट दो, कल्बे जवाद साहब की बात करें तो आज वो राजनाथ जी की वाजपेयी जी से तुलना कर रहे हैं, बाबा रामदेव की बात करें तो वो बीजेपी को बैक कर रहे हैं। शुड रिलीजियस लीडर्स बी बैकिंग इंडिविजुअल पार्टीज? ये एक अनहेल्दी बात नहीं है बुखारी साहब? देखिए, मैं पहले भी आपके इसी प्रोग्राम में अर्ज कर चुका हूं कि किसी भी मजहबी रहनुमा का ये खास खुसूसी तौर पे इस्लाम में किसी भी इमाम का या किसी भी मजहबी रहनुमा को ये हुक्म है कि वो किसी अपनी कम्युनिटी को गाइड करे, मजहबी मामलात में भी, सोशल मामलात में भी, और अगर जरूरत पेश आए तो वो सियासी मामलात में भी दखल अंदाजी करे। इसी हक का इस्तेमाल करते हुए, इसी जिम्मेदारी को समझते हुए शाही इमाम साहब ने मुख्तलिफ कांग्रेस के सियासी लीडरान से मुलाकात की और उन्होंने ऐलान किया कांग्रेस के हक में। तो इस्लाम में बिल्कुल क्लियर है कि सियासत और मजहब दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, दोनों साथ साथ जुड़ी हुई चीजें हैं। पर बुखारी साहब मैं पूछना चाहूंगी, मेरे भी मुसलमान दोस्त हैं, वो मुझे कहते हैं कि ये जो क्लेरिक्स हैं ये हमारे बारे में अज्यूम करते हैं कि हमारा अपना दिमाग नहीं है, ये कौन होते हैं हमें एक पॉलिटिकल फतवा देने की? आप क्या कहेंगे? इज दिस अ पॉलिटिकल फतवा? नहीं, इट कांट बी अ पॉलिटिकल फतवा, इट्स ऑलवेज बीन एन अपील। आई रिपीट, फतवा इज नॉट कांट बी गिवन ऑन पॉलिटिकल इश्यूज और पर्सनल इश्यूज। वो फतवा सिर्फ बात नहीं कर रही, एक्चुअली एक किस्म का ऑर्डर हो गया ना, एक किस्म की इंस्ट्रक्शन हो गई, यू आर टेलिंग पीपल व्हाट टू डू। नहीं, दिस इज अ मिस इंटरप्रिटेशन। कभी भी नहीं, हुक्म नहीं हो सकता, ये अपील हुई। आप अगर शाही इमाम साहब का बयान पढ़ें और उसमें देखें टेलीविजन पे जो उन्होंने फरमाया था कि वो बिल्कुल भी हुक्म नहीं था, वो उनकी जाती अपील थी अवाम से और बिलखुसूस सेक्युलर अवाम से। तो कहीं से कहीं तक भी ये किसी चीज को ये गलत प्रोपेगेंडा है कि किसी चीज को थोपा जा रहा है या जबरदस्ती लोगों के दिमागों में ये चीज डाली जा रही है। हरगिज नहीं, एक अपनी राय रखी जा रही है और अपील की शक्ल में रखी गई है। कतई ये चीज नहीं है कि साहब ये कोई जबरदस्ती आवाम के साथ की जा रही है। और सबको अपना इख्तियार है अपनी राय रखने का और सबको अपना फैसला लेने का इख्तियार है और हक है। मुझे ये इंटरेस्टिंग लगता है कि बाबा रामदेव और तारिक बुखारी साहब, आप दोनों ही इस बात पर शायद अग्री करते हैं that religion and politics cannot be kept separate। मैं आपसे पूछूंगी स्वामी जी कि मेधा पटकर हैं, वो पहले जब आप लोगों की एंटी करप्शन मूवमेंट थी, आप लोग सब एक साथ थे, तब अन्ना हजारे और आप भी इकट्ठे थे। वो कहती हैं कि बाबा रामदेव का अब योगी राज नहीं है, अब सिर्फ मोदी राज है। और वो ये भी कहती हैं कि आप योगा गुरु हैं, वो भी आपकी जो बहुत ही मशहूर जो आप आयुर्वेद की दवाइयां को आपके लीडरशिप के अंडर जो बनती हैं वो भी इस्तेमाल करती है। लेकिन वो पूछना चाहती हैं कि अगर आपका योगा मीट है तो योगा मीट के दौरान आप किसी पॉलिटिशियन की बात क्यों करते हैं? अभी मीडिया रिपोर्ट्स आई कि केरला में आपका बहुत बड़ा एक सम्मेलन हुआ, वो योगा के संदर्भ में हुआ, लेकिन वहां पर आपने मोदी जी की बात शुरू कर दी। देखो, मेधा जी के बारे में मैं कहूंगा, वो एक बहुत अच्छी सामाजिक कार्यकर्ता, उनसे हमारा प्रेम है, आज भी है, आगे भी रहेगा, मुद्दों के आधार पर, मूल्यों के आधार पर, देश के आधार पर। और बरखा जी, मैं आपसे दो बातें साफ कर देना चाहता हूं। पहली बात, हमने मोदी जी का मुद्दों के आधार पर समर्थन किया है। काला धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन इस देश के सबसे बड़े मुद्दे हैं, और काला धन, भ्रष्टाचार के कारण से और इस अनजस्टिसफुल व्यवस्था के कारण से देश के अंदर महंगाई, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और सोशल एंड इकोनॉमिक इंजस्टिस और साथ ही साथ असुरक्षा और ये पॉवर्टी, ये तमाम चीजें देश में पैदा हुई। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूं, जो बहुत बड़ी बात है कि राजनीति धर्म में हस्तक्षेप करे, वो सबको स्वीकार है। क्या मेरे ऊपर सेल टैक्स, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई लागू नहीं होती? क्या मेरे ऊपर इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं होता?
क्या मेरे ऊपर इस देश के करीब 1 लाख कानून बने हुए वो मुझ पर लागू नहीं होते? मेरे ऊपर देश की सारी राजनीति लागू होती है और मैं राजनीति में अच्छाई और सच्चाई की बात करूं, धार्मिकता, नैतिकता, आध्यात्मिकता और राष्ट्रीयता के धरातल पर रह करके इसमें आपत्तिजनक क्या है? और जब तक इस देश में जो असली मुद्दे हैं, सही मुद्दे हैं, 1000 लाख करोड़ देश का लूटा है, जो 16 करोड़ बाहर गए और 900 लाख करोड़ यहां अंदर है, और इन लूटने वालों के प्रति मैं कहता हूं कि भाई सजग हो जाओ, देश लूट लिया, नहीं बचाया तो आगे देश खत्म हो जाएगा और किसी को न्याय नहीं मिलेगा। मैं यदि एंटी करप्शन की बात करता हूं, इसमें गलत बात क्या है? मुझे कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, क्या आप और ये राजनीति मानेंगे मुझे कुछ भी नहीं दे सकती जो मैं ना पाया हो। पर आप क्या ये मानेंगे कि आपका टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में भी रोल रहा है? आपने उमा भारती को भी रेकमेंड किया कि वो सोनिया गांधी के खिलाफ लड़े, बीजेपी ने आपकी वो बात तो नहीं मानी, लेकिन माना जाता है कि और बहुत सी बातें मानते हैं आप, कैंडिडेट्स में भी उनको एडवाइस करते हैं। अच्छे लोग, निष्कलंक, नॉन करप्ट और कैरेक्टरफुल लोग वो पॉलिटिक्स में आए, ये कौन नहीं चाहता? क्या आप नहीं चाहती बरखा जी की देश की राजनीति में शुचिता आए, उसमें पवित्रता आए, पावर में प्योरिटी आए? दिस इज अवर एम्बिशन। मुझे न एमएलए बनना, न एमपी, न सीएम, न पीएम, लेकिन देश तो हम सबका है। क्या मीडिया में रहते हुए आप देश में अच्छी पॉलिटिक्स हो, ये नहीं चाहते? जैसे हमारे बुखारी साहब अभी कह रहे थे, हमारे वेदों में कहा महावस्ते ईशता, हम चोर बेईमान लोगों का राज नहीं होना चाहिए। हमारे गुरु ग्रंथ साहब में कहा धरती सारी साध की तस्कर बैठे आन, ये धरती तो भगवान की है, सत्य धर्म और न्याय की, इसके ऊपर बेईमानों का राज नहीं होना चाहिए। इंद्रमोर्धन तो अपत्रकणवंत विश्वमार्यम। हम धार्मिक, आध्यात्मिक, नैतिक किसी भी परिप्रेक्ष्य में सोचें, समस्त देशवासियों को मैं तो कहता हूं 125 करोड़ लोगों को राजनीतिक दृष्टि से सोचना चाहिए, सबको राजनीतिक होना चाहिए। जो भी वोट देता है, किसी न किसी पार्टी को सपोर्ट करता है, वो हर आदमी देश में राजनीतिक है। या तो वोट देने का अधिकार सबका खत्म कर दो, या तो हमको अपनी बात कहने का हक दो, और वही हम बात करें जो हमें हमारे संविधान ने हक दिया है। हम संविधान के दायरे से बाहर नहीं जा रहे, हम धर्म और अध्यात्म नैतिकता के दायरे से बाहर नहीं जा रहे, और अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन देश के लिए अच्छा करना चाहिए सब लोगों को, ये मैं आज मान रहा हूं और अंतिम श्वास तक मानूंगा। बाबा रामदेव और बुखारी साहब, आपसे एक रिक्वेस्ट है, लेट्स गेट अ सेंस फ्रॉम आवर वॉइसेस हियर। हम एक छोटे से गांव में हैं और यहाँ पर जो हमारे गेस्ट हैं, लेट्स गेट अ सेंस ऑन फ्रॉम व्हाट दे थिंक। मेहरू, लेट मी स्टार्ट विद यू। डू यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग दैट मौलाना तारिक बुखारी and Baba Ramdev are in complete agreement on one thing, that religion and politics are inseparable, whereas all of us keep arguing that if there's anything that secularism means, it should be that they should be kept separate. Is that even possible? And the kind of mixing up that you're seeing today, is it healthy for you as a voter, as a citizen? No, I think the confusion here is in defining the word secularism. To me, the word secularism means to be a believer in religion, in your spiritual growth, and also have others believe in what they think is good for their spiritual growth. So when you see spiritual leaders or clerics getting involved in actually endorsing parties, no, that is all right. You don't have a problem with that? No, I don't have a problem. It's just that nobody listens to them. I, as a voter, am not going to listen to Jawad Kalbe Sahab, the Shia cleric, or to the Imam Bukhari to vote. You know, the word we must understand, by secularism we mean the state, the government does not interfere in the religious life of its citizens. So the state is secular, but we are all believers. So ideally speaking, it would be a very good balance if every individual had a very clean spiritual life, a clean religious life, as well as a clean... So am I understanding you right? You're saying you don't have a problem with Imam Bukhari or Maulana Kalbe Jawad expressing a political opinion, but you don't listen to them. I don't listen to them. I'm very happy to see, to have seen on your channel Rajnath Singh ji meeting with Muslim clerics. Clerics, you know, the Shias and the Sunnis. Yeah. I wish they would meet not only once in 5 years, but would meet more often. But to expect a vote on the basis of that. No, but to take that meeting a step further, they should also drink from each other's glass. They should be breaking bread together and eating from the same thali. That is the Ganga Jamna.
tehzeeb of Lucknow. That's a very interesting point, and I'm going to take it back to both Bukhari Saab and Baba Ramdev. Nitin, what do you think? Do you agree with Mehru when she says they have a right to express their opinion, but they shouldn't assume that the voter will follow blindly? See, legally they are totally right, because they have the right to an opinion, they have a right to voice that opinion. Yes. But is it morally right to channel the minds of people who have come to you for guidance towards one side? Why are you telling them to vote for the BJP or the BSP or anyone? Tell them to make up their own minds. Very, very interesting point. You would rather hear spiritual leaders say what? Down the ages, leaders, gurus have been gurus not because they showed the right path, because they showed us that the right path is within us. So we've got to look within, and we've got to decide which is the right party for us. So you don't want parties or individuals being endorsed by religious leaders? Let them, like Mehru ma'am said, who listens to them? Let me take this back to Swami Baba Ramdev and Tariq Bukhari. Bukhari साहब आपसे शुरू करती हूँ. You heard Mehru Jafar here. She's saying बहुत अच्छी बात है कि राजनाथ सिंह कल्बे जवाद से मिले, और भी सुन्नी क्लेरिक्स हैं यहाँ पर, खालिद रशीद फिरंगी महली हैं, उनसे मिले. बहुत अच्छी बात है. सोनिया गांधी इमाम बुखारी से मिली, शाही इमाम से मिली. बहुत अच्छी बात है. लेकिन डू नॉट अज्यूम कि आप जो कहेंगे वोटर वो मानेगा. यू आर पेट्रोनाइजिंग द वोटर. यू नीड टू चैनल योर एनर्जी बेटर. आप क्या कहेंगे बुखारी साहब? Who claim that everyone should follow the appeal, but there must be some influence on the voting, otherwise why would parties come to you in the time of elections? Bukhari साहब, there must be some influence on elections. You ask the parties. Election के time ही क्यों आते हैं सारी parties आपके? You go and ask the parties. You go and ask the parties. But looking at keeping in mind the current political scenario, Shahi Imam Saab appealed to the community as well as the secular masses of the country to go in in a particular direction, and we again I say that we are not claiming that everybody should listen, but it's a duty of a religious leader. I repeat, it's a duty of a religious leader, if required, to intervene into the political matters of the country also. It's the duty. You're saying it's not just a right, it's a duty. Baba Ramdev ji, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? यहाँ पर ये भी चर्चा हो रही. Okay, it's a duty. मैं आपसे पूछना चाहूंगी बात को आगे बढ़ाते हुए. यहाँ पर हमारे जो दोस्त बैठे हैं वो कहते हैं that religious leaders should be channelizing their energy better. उनकी कोशिश ये होनी चाहिए कि सारे धर्म के लोग उठे बैठे, आपस में मिले, और ये जो सबकी religious symbols हैं वो एक दूसरे में इंटीग्रेट हो जाए. यही गंगा जमुना की तहजीब है. आपसे पूछना चाहूंगी, मोदी जी जिनको आप सपोर्ट करते हैं, उनसे बार बार पूछा जाता है कि भाई आपने तरह तरह के हेडगियर पहन लिए, आपने पगड़ी तक पहन ली, आपने सिख टर्बन तक पहन ली, आप जहां गए आपने वहां की रिवाज के मुताबिक टोपी पहन ली, लेकिन जब किसी मुसलमान क्लेरिक ने आपको आकर एक टोपी दी तो आपने मना कर दिया. तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, एज सच ए बिग लीडर, आप क्या मोदी जी को कहेंगे कि अगर एज अ प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट all religious symbols should be accepted? देखिए बरखा जी, पहली बात तो योग, आयुर्वेद और स्वदेशी के साथ हमने देश को जोड़ने का काम किया. जो पूरे एशिया में सबसे बड़ा इस्लाम का केंद्र है यहां पर हमारे देवबंद में, वहां पर मैंने जाकर के पहली मर्तबा ये कहा इस्लाम की एक छोटी सी कुरान पढ़ करके कि हम सबका खून, हम सबकी मूल संस्कृति, हमारी मूल पहचान और हम सबका मूल वो एक है, और हम सबको एक रह करके जीना है. पहले भी हम अंग्रेजों से एक रह करके लड़े, देश को हमने, मुल्क को आजाद कराया, और आज भी हमें इस देश को बचाना है तो एक रहना पड़ेगा. मैंने हमेशा जोड़ने की बात की, एक बार भी स्वामी रामदेव ने कभी तोड़ने की बात नहीं की. जहां तक आदरणीय मोदी जी का प्रश्न है जी, मैं मस्जिदों में भी जाता हूं, गुरुद्वारों में भी जाता हूं, गिरजाघरों में भी जाता हूं, और जहां तक मोदी जी का प्रश्न है, मैंने अनेक मर्तबा उनसे बात की. वो भी हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमानों से बराबर का प्रेम करते हैं. मैंने ऐसा अनुभव किया. जहां तक यह प्रश्न है कि टीका का, टोपी का, ये सब सिंबॉलिक का चीजें हैं, तो मैं ऐसा मानता हूं कि रिचुअल्स में और सिंबल्स में ये आपस में एक दूसरे का आदर करना चाहिए. अब इसको कोई पहनता है या नहीं पहनता है, ये देश में बड़ा मुद्दा नहीं.
टोपी वाले का सम्मान करना चाहिए, टीके वाले का सम्मान करना चाहिए, क्रॉस वाले का सम्मान करना चाहिए, और उसके लिए भी बराबर, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट हो, सारी चीजों में उसकी बराबर की भागीदारी होनी चाहिए। कांग्रेस ने टोपी तो पहनी, लेकिन मुसलमानों के लिए क्या एजुकेशन का जो काम करना चाहिए था, एम्प्लॉयमेंट के लिए जो काम करना चाहिए था, उनके हेल्थ को, उनकी सोसाइटी को बेटर करने के लिए जो काम करना चाहिए था, वो किया? इसमें तमाम दूसरे नेताओं के नाम ले सकता हूं जो टोपी तो पहनते लेकिन मुसलमानों के हित की बात नहीं करते। मैं ऐसा मानता हूं देश आगे बढ़ेगा। जस्ट वुड लाइक टू ऐड अ पॉइंट फॉर बाबा रामदेव जी, जस्ट अ पॉइंट। आपके पास बाबा रामदेव जी के पास एक ऐसा नायाब हुनर है, कम से कम एक आसन वो ऐसा डेवलप कर दें जिससे कम से कम बीजेपी की मुस्लिम दुश्मन आइडियोलॉजी चेंज हो सके। कम से कम एक आसन तो डेवलप कर दें, ये मेरी रिक्वेस्ट है। जी मैं आप टोपी पहनने को छोड़ दीजिए बाबा रामदेव जी, मैं आपसे मैं नाराज नहीं हूं, लेकिन जो टोपी पहनने न पहनने का इशू है उसको रहने दीजिए। वो तो हमें पता है कि वो पहन भी लेंगे तो मुसलमानों के जो लिए उनकी आइडियोलॉजी है वो बदलने वाली नहीं है। कम से कम आप इतना जो है वो एक हमारे ऊपर रहम कर दीजिए कि उनकी आइडियोलॉजी चेंज हो जाए। कोई ऐसा आसन जरूर डेवलप कीजिए। मैं ऐसा समता आसन जरूर कराऊंगा जिससे ये विषमता दूर हो, जो मजहब की दीवार खड़ी हो गई है वो टूटे। तो ये समता आसन हम जरूर कराएंगे, ममता आसन कराएंगे, परस्पर प्रीति बढ़े। मैं चाहता हूं, और हम तोड़ने नहीं देंगे इस देश को किसी भी कीमत पर। जी मैं चाहूंगा आपके सामने बीजेपी के लोग वो करते हुए नजर आए, मेरी ख्वाहिश। जरूर ममता आसन कह रहे हैं, जरूर ममता आसन कह रहे हैं रामदेव जी। पर बाबा रामदेव जी आपसे पूछना चाहूंगी, आपने कहा कि वो प्रेम, करुणा, मर्सी एंड कंपैशन की बात कर रहा हूं, नोट ममता जी। जी वो उसमें कोई गलत फहमी नहीं है, आप फिक्र ना करें। लेकिन हम आपसे पूछना चाह रहे थे कि आपने कहा कि टीका और टोपी ये सिर्फ सिंबलिज्म है, और टोपी पहन तो ले लेकिन मुसलमानों के लिए कुछ करा ना जाए, उस सिंबलिज्म का क्या फायदा? जब आप मोदी जी के करीब हैं, आप उनको क्या एडवाइस देंगे? क्योंकि बहुत हमारा डाइवर्स देश है। लोग कहते हैं कि या तो आप किसी धर्म की टोपी ना पहने या सब धर्मों की पहन ले। मैं ये भी समझ सकती हूँ कोई इंसान बोले कि भाई ना मैं टीका पहनूंगा ना मैं टोपी पहनूंगा, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आप मानते हैं कि ये सिंबलिज्म थोड़ा महत्वपूर्ण है। आप मोदी जी को इस बारे में क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, मैं मोदी जी को आज से नहीं करीब 2 दशकों से जानता हूं। मैंने उस शख्स को बहुत गहराई से समझने की कोशिश की है। मोदी जी मुसलमानों से घृणा नहीं करते। और देखो, अब तो ये होने वाला, आपने भी 275 सीटों का कल आंकड़ा बताया था सर्वे का, 300 सीटों के साथ मोदी जी जीतने वाले। और मैं आपको ये भरोसा दिला सकता हूं कि मोदी जी हिंदू और मुसलमान के नाम पर देश को तोड़ने का काम नहीं करेंगे। देश को तोड़ने का काम मजहब के आधार पर नेहरू जी ने किया था। मैं किसी की आलोचना के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं, मोदी जी ने कई मरतबा मुझसे मुलाकात के दौरान एक बात को कहा कि बाबा जी, हम मुसलमानों से नफरत करके, घृणा करके और हिंदू मुसलमान के नाम पर देश को लड़ा करके देश को आगे नहीं बढ़ा सकते, देश को चला नहीं सकते। मोदी जी कभी भी इस देश में किसी भी तरह का कोई मजहबी दंगा फसाद नहीं होने देना चाहते और नहीं होने देंगे। मैं कम से कम आपको इस बात के खुद भी यकीन दिला सकता हूं। और मोदी जी हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए अलग कोई नीति बना करके नहीं चलेंगे। अर्थात वो मुसलमानों के लिए भी जो उनको आर्थिक समृद्धि का प्रश्न है, उनके एजुकेशन का प्रश्न है, हेल्थ का, एम्प्लॉयमेंट का प्रश्न है, और उनको इस देश में सम्मान के साथ देखा जाए। मुसलमानों को जो शक की निगाहों से देखा जाता है कि हर जो है वो हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान होता है। जो इस तरह की एक मानसिकता डेवलप की गई है, इससे छुटकारा मिलना चाहिए। हर मुसलमान को सम्मान और स्वाभिमान के साथ यहाँ जीने पर हक का मिलना चाहिए। इसके लिए हम पूरी तरह से एक वातावरण बनाएंगे देश के अंदर, और मुझे लगता है इसमें मोदी जी किसी भी तरह से पीछे नहीं हटेंगे। बाबा रामदेव एंड तारिक बुखारी, आप हमारे साथ बने रहे। लेट्स गेट अ सेंस अगेन फ्रॉम मेहरू एंड नितिन ऑन व्हाट दे थिंक और व्हाट दे हैव हर्ड सो फार. Go ahead. What do you think? It's not about individuals, but what is the larger point? You said clerics can speak, swamis can speak, the voter will make up her own mind. The point about religious integration, the point about cultural integration, where do you come in on that? You said you were very happy that Rajnath Singh met with Muslim clerics. The Congress is saying, oh, but you're a hypocrite, you criticize Rasta, you're doing the same. No, the point is Baba Ramdev sounds fantastic this evening. I mean, I'm really very impressed, and I hope what he said is
he is able to practice. But again, I want to quote Modi, you know, on a television channel. He said, मैंने इसलिए skull cap नहीं पहनी क्योंकि ये हमारी परंपरा नहीं है. This is shocking for people who live in Lucknow, because हमारी परंपरा skull cap और तस्बीह भी है और मंदिर भी है और रुद्राक्ष की माला भी है. I mean, how can I? So if Modi himself, never mind what Baba Ramdev is saying on the behalf of BJP and Modi, but Modi has said it himself. But can I ask you to argue it the other way around? You also have the Akhilesh Yadav who will put on the skull cap, और riots हो रहे हैं मुजफ्फरनगर में, उसकी कोई परवाह नहीं. आप उस समय नाच गाना कर रहे हैं सफाई में, तो उस टोपी का वैल्यू क्या? नहीं, उससे टोपी से कोई मतलब ही नहीं है. We are reducing a very serious issue down to टोपी and डंडा. That is not the issue. I mean, the Samajwad Party, indeed, if it was responsible for having a hand in the Muzaffarnagar riots, and indeed if it neglected the refugees and the victims of the riots, then it is to be blamed. But that doesn't justify Modi saying skull cap pehna hamari parampara nahi hai. Nitin, what do you feel? You know, if we accept, and here we have to acknowledge what both Bukhari Sahab and Baba Ramdev have pointed out, if we accept that how politicians engage with religious symbols is important, then we are also accepting that the mix of religion and politics is inevitable. After all, नारियल तोड़ना, आप मंदिर जाते हैं, आप मस्जिद जाते हैं, often you see politicians, this is part of their campaign, this forms part of their visual narrative. What would you like to see religious leaders like Imam Bukhari and Baba Ramdev actually doing when it comes to politics? Politicians resort to symbolism to attract the voters. Mrs. Gandhi starting off her campaign with a temple visit is seen as probably towing a little pro-Hindutva line. और अरविंद केजरीवाल गंगा स्नान same. तो सभी करते हैं. This imagery is embraced by everybody. Exactly. And coming back to what Baba Ramdev ji said, I respect him, but that topi and tika are all symbols. But what symbolism is being thrown out to the masses when Modi refused to wear the skull cap? I have been to the Deva Sharif Mazar wearing a skull cap. That is what Lucknow Tehzeeb is all about. But if you say tika and topi are symbols, what imagery is being sent out to the masses when he is refusing that cap? But let me, I will put that to him. But let me also ask you that when you see the imams, you know, who are not exactly, and Bukhari Sahib will forgive me for this, seen as the modern face of Islam, is that secular? When they get involved in politics, when Congress, who attacks the BJP every day on secularism, goes and meets a cleric, now it's a different matter. Rajnath Singh has also done that. Does that hurt their argument on secularism? If you're quoting the orthodoxy, Meru? No, I think it's all right. I think because you know we also resort to religious symbols. You know, when I go to a Sufi mazar, I will cover my head, or if this village demanded that I, you know, sit in a particular way, that is not the issue. The issue is hypocrisy, cruelty, you know, for short-term gains, you know, spoiling this. It took centuries for us to build this Ganga Jamna Tehzeeb, you know, where you know, you will not understand it. It's so beautiful and complex and so rewarding, and that is threatened if Baba Ramdev could explain, you know, what Amit Shah meant when he said revenge law or Babar ki aulad kahan se. Bhai, our ancestors claim their origins to Persia, तो हम बाबर की औलाद कहाँ से हो? स्वामी जी, आप प्लीज रिस्पॉन्ड करें. अमित शाह को लेकर बहुत एक डिबेट चली है कि एक तरफ, मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि आप बीजेपी का समर्थन करते हैं. अमित शाह के जो बयान हैं, आप उनसे क्या थोड़े डिस्टर्ब्ड हैं, और डू यू डिफेंड हिम लाइक द बीजेपी डज? देखिए, मैं दो बातें कहना चाहता हूं. एक बात तो ये कि जो है किसी भी सोसाइटी के अंदर जो बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए. मोदी जी ने 3 बातें कही जिस दिन मैनिफेस्टो जारी किया कि मैं बदनीयती से कोई काम नहीं करूंगा, जो दायित्व दिया जाएगा उसको प्रामाणिकता से निभाऊंगा, अपने लिए कुछ नहीं करूंगा. जहां तक ये प्रश्न है कि जिन लोगों ने देश के साथ धोखा गद्दारी की है उनको हमें बदलना जरूर चाहिए. दूसरा प्रश्न ये है कि ये जो बातें हो रही हैं, मैं एक नहीं ऐसे 8-10 बड़े मुस्लिम धर्मगुरुओं को जानता हूं
जो टीका नहीं लगवाते, जब उनको टीका लगा दे तो हाथ सामने कर देते, वो कभी भी कहीं माथा नहीं टिकाते। जरा गौर से सुनना, देखो मैं किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा हूं, क्या आपने किसी भी बड़े मुस्लिम लीडर को मस्जिद में जाके मत्था टिकाते हुए देखा? मैं मस्जिद में भी गया हूं, जो उनकी प्रक्रिया उसके अनुसार वहां जाकर के प्रेयर की है। मैं गुरुद्वारे में भी जाता हूं, मत्था टिकाता हूं, जो भी धर्म के सम्मान के एक अलग, देखो एक आदमी का, लेकिन वो मेरे साथ में कई मर्तबा, जो मैं अभी किसी का नाम नहीं लूंगा, बड़े मुसलमान लीडर थे, उन्होंने दीप, जो हमारे हिंदू धर्म में दीप प्रज्वलित करते नहीं किया, मैं तो उसमें आपत्ति नहीं मानता हूं भाई। यदि कोई अपनी मर्यादाओं का, जैसे इस्लाम में लिखा है कि भाई व्यक्ति पूजा नहीं करना, मैं भी महर्षि दयानंद का शिष्य हूं, आर्य समाज की परंपरा में मैं पला हूं, सनातन धर्म को मानता हूं, जो हमारी जो सनातन जैन परंपरा ऋषि परंपरा है। लेकिन मैं आपको कहता हूं, महर्षि दयानंद ने कहा मूर्ति पूजा मत करो, लेकिन मैं मूर्ति का अनादर नहीं करता। तो आदमी को अपनी आइडियोलॉजी पर अडिग रहना चाहिए और दूसरे के आइडियोलॉजी का अनादर नहीं करना चाहिए। ये मैं मानता हूं कि ये सच्ची पंथ निरपेक्षता है, ये सेकुलरिज्म है कि आप अपने, यदि कोई आपने ऐसा मान्यता कर ली, ऐसे हमारे इस्लाम में भी बहुत से लोग हैं, हिंदुओं में भी ऐसे बहुत से लोग हैं, इसके ऊपर हमको डिबेट नहीं करनी चाहिए। एक दूसरे का आदर करने वाली बात के ऊपर हमको बहुत ज्यादा गौर करना चाहिए, मानवतावाद हमारे बीच में रहना चाहिए। जी, बहुत आपने इंटरेस्टिंग बात की और मैं बुखारी साहब का इस पे रिस्पांस चाहूंगी। देयर आर मुस्लिम लीडर्स आल्सो हु वुड नॉट वांट द टीका, एंड आई फाइंड इट इंटरेस्टिंग हाउ बाबा रामदेव phrases it. He says that sometimes your own beliefs will not allow you to do a certain thing, but you just have to respect the other person's custom even if you don't embrace it. बुखारी साहब, क्या एक हिपोक्रेसी है कि नरेंद्र मोदी ने स्कल्प कैप नहीं, नरेंद्र मोदी ने स्कल्प कैप नहीं पहनी तो सब उनके पीछे पड़ गए, लेकिन कोई मुसलमान टीका नहीं लगाता, कोई टुमारो मुस्लिम पॉलिटिशियन डज नॉट डू इट, क्या इसमें एक हिपोक्रेसी है कि मीडिया भी उस पर फोकस नहीं करती? It's not an issue for us if Mr. Narendra Modi doesn't accept the skull cap. You can say a symbolic skull cap for a Muslim. जी. इसमें हमारे लिए ये कोई इशू नहीं है। अगर जैसे इस्लाम में आइडियल जो वर्शिप है वो मना है, तो जाहिर सी बात है कि अगर मैं किसी गैर मुस्लिम के साथ या किसी हिंदू भाई के साथ मैं किसी सफर में हूं, तो जाहिर सी बात है अगर रास्ते में मंदिर आएगा तो वो मुझसे ये नहीं कहेंगे कि साहब आप नमाज जो है वो मंदिर के अंदर ही आके पढ़िए, वो अपनी पूजा करेंगे। और अगर नमाज का वक्त हो गया है कि तो मैं नमाज उस मंदिर के बाहर खड़े होकर पढ़ सकता हूं। और उस सूरत में दोनों ने मजहबी जज्बात की रिस्पेक्ट करी, तो इसमें इस रिस्पेक्ट जरूरी है मेरी नजर में। और इस्लाम भी इस बात की क्लियर हिदायत देता है, क्लियर इंस्ट्रक्शंस आर देयर टू रिस्पेक्ट द अदर रिलीजन। वेयरिंग अ कैप, putting up a tika or not, it's not an issue for us. Okay, we have never made that issue. It is bound to happen. Okay, last comments now from all of you. Very quickly, let's start with you. बरखा जी, बुखारी जी को हमको तकलीफ नहीं है, बुखारी जी को हमको तकलीफ नहीं है टीका टोपी में, तो आप लोगों को क्यों बिना मतलब टीका टोपी को इशू बनाते हो? नेशनल इशू होने चाहिए हमारे सामने, किसी की नेशन बिल्डिंग। रामदेव जी, आप कभी भी देखिए कि मीडिया ने, मैं अर्ज कर रहा हूं स्वामी जी, आप बताइए कभी इस मसले को हमने कभी भी इशू नहीं बनाया, मीडिया ने उसको उछाला। अब जैसे कि इमाम बुखारी साहब की मुलाकात सोनिया जी से हुई, मैं उस पॉइंट पे वापस आ रहा हूं, तो उसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन उसको ब्लो कर दिया। और बीजेपी के जो आपके दोस्त हैं उन सब हजरात ने उसको एक बहुत हंगामा मचाया, जबकि खुद राजनाथ सिंह जी कुछ मजहबी रहनुमा से कल मुलाकात करते हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं, बिल्कुल क्लियर है इस बात के, डबल स्टैंडर्ड सामने आते हैं। स्वामी जी, आप मानेंगे कि बीजेपी, आप स्वामी जी, राजनाथ सिंह की जो मीटिंग हुई है यहाँ पर मुस्लिम क्लेरिक्स के साथ, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि बीजेपी ने क्रिटिसाइज किया था इमाम बुखारी और सोनिया गांधी की मीटिंग को। देखो, मैं तो योग वाला व्यक्ति हूं, योग, आयुर्वेद, स्वदेशी, ये मेरी मूल प्रकृति है। इस समय आपद धर्म के रूप में हमने राष्ट्र धर्म को रखा हुआ है। योग का मतलब जोड़ना, मैं तो जोड़ने वाला आदमी हूं, जोड़ने की बात करूंगा, तोड़ने की बात कभी नहीं करूंगा। ये मेरा जो है सिंगल लाइन, मेरा आइडियोलॉजी, मेरा प्रिंसिपल। आपने जवाब नहीं दिया, आपने जवाब नहीं दिया। बुखारी साहब कहते हैं भाई हमारे ऊपर रामदेव जी डक द क्वेश्चन। He'll answer. स्वामी जी जवाब दें प्लीज। ये जो राजनाथ सिंह की मुलाकात है मुस्लिम लीडर के साथ, मैं तो चाहता हूं कि इस हिंदुस्तान में
जो है ये मजहब के नाम पर जो एक दूसरे का इस्तेमाल किया जाता है, ये बंद होना चाहिए। और जो भी देश में डिबेट हो वो नेशनल इश्यूज पर होनी चाहिए। ब्लैक मनी, करप्शन, हेल्थ, एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इस देश में इकोनॉमिक एंड सोशल इम्बैलेंस, ये हमारे इश्यूज हैं, इनके ऊपर टॉक्स होने चाहिए। जी बुखारी जी, वन क्वेश्चन टू यू। एक सवाल बुखारी जी आपके लिए, एंड देन वी हैव टू स्टार्ट एंडिंग। नितिन, आप और आपका और बाबा जी का प्यार देख के मेरा तो हृदय परिवर्तन हो गया। तो क्या कल आप मस्जिद में जाके बाबा रामदेव जी का कैंडिडेचर इंडोर्स करेंगे, अपने लोगों को बोलेंगे कि बीजेपी के लिए वोट दें? बुखारी जी, It's a fight of an ideology. It's a fight of an ideology. Baba Ramdev ji से कोई भी हमारा झगड़ा नहीं है। You have endorsed आपने वाजपेयी, you are sitting and endorsing Baba Ramdev ji's views right now. वाजपेयी जी को आपने, you are so much in harmony with them. जी, would you like to endorse Baba Ramdev ji's candidature? अगर कोई बात सही कह रहा है, that views can be endorsed, इसका मतलब ये नहीं है कि जिन लोगों को वो सपोर्ट कर रहे हैं उनकी आइडियोलॉजी को मैंने सपोर्ट कर दिया। पर आप पहले तो कर चुके हैं। 2004 में आप वाजपेयी जी के साथ थे, हिमायत कमेटी के मेंबर थे शाही इमाम बुखारी साहब। Pardon? I said you have backed वाजपेयी in the past। 2004 में हिमायत कमेटी जो थी, आप लोग साथ में थे बीजेपी के। No, we were not. I would like to make it clear, if you have time, that it was a statement, by Vajpayee ji that हम मुसलमानों के करीब आना चाहते हैं। तो इमाम साहब रिप्लाइड कि 20-25 साल की दूरी 20-25 दिन में कम नहीं हो सकती। फर्स्ट बीजेपी शुड चेंज देयर आइडियोलॉजी, देन वी कैन थिंक अबाउट इट। इट वाज ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन, और बीजेपी ने उस इशू को, उस आंसर को अपने लिए इस्तेमाल किया कि साहब बीजेपी को सपोर्ट कर दिया, बीजेपी को सपोर्ट कर दिया। जब आइडियोलॉजी ही बिल्कुल डिफरेंट है तो इट नॉट एट ऑल अ क्वेश्चन ऑफ सपोर्टिंग बीजेपी एट ऑल। We will leave it there. बाबा रामदेव एंड तारिक बुखारी साहब, स्वामी जी और मौलाना साहब दोनों के समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much for joining us. Quick last words to you, Mehru, because you get a last word. We are discussing Modi and the skull cap so much because he is about to become our prime minister. If a Muslim was aspiring for that position, he would have to go and take a matha in the Gurdwara and in a church and in a temple, and this has happened in Lucknow. There are Hindus who built mosques, and there are Muslims who have built, and there is Banaras where Ustad Bismillah Khan plays at the Kashi Vishwanath Mandir. Wajid Ali Shah used to go and dance in Vrindavan, so it's not as if it's not happened. And here in Lucknow, ideology and religion has been bent so that people could live together in harmony. So I do not agree with Modi's slogan that India first and whatever. Okay, so for me it's Indians first. The debate will continue. Nitin and Mehru, thank you so much. Swami Ramdev and Tariq Bukhari, thank you so much for joining us on this special election episode as we're on the road to 2014. Very interesting perspectives that you actually certainly don't get in the studios of Delhi. From the entire team, thanks for watching. This is a country where religion and politics perhaps are intertwined, but perhaps what's most important is to invoke the syncretic interdependence, economic and cultural, of our tradition. When we talk of custom, when we talk of parampara, that's where the real story lies. Thanks for watching from the entire team. Good night and goodbye.